my sparkling stars, welcome to a very enlightening session of grade 7 mathematics by Anjana, and we are going to start with chapter number 7 and it is comparing quantities. तो start करते हैं सबसे पहले warm up से. Warm up में हम सबसे first question जो लेंगे that is of finding the ratio. तो यहाँ हमें दिया हुआ है 5 पैसा to 50 पैसा. We'll write 5 ratio 50 and इसमें 5/50 लिखा. देखो दोनों numbers 5 से divisible हैं. So we are going to divide them by 5 and we get 1/10. Right? And after this we have 15 kg ratio 75 kg. तो इसको फिर से हमने simplest form में लिखा 15 ratio 75. 15 और 75 दोनों किस टेबल में आते हैं? Very good. We divide them by 15, right? So this is, you get 15, 1 time is 15 and 15, 5 time is 75. आपका आंसर आया 1/5. Got it? And here we have 4 years to 9 months. तो पहले हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व की कि एक यूनिट ईयर्स में दिया है, दूसरा यूनिट मंथ्स में दिया है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में. सो 4 multiply 12 and upon 9. ओके, फर्स्ट थिंग इज इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करें, और सेकेंड ऑप्शन ये है कि ये दोनों नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं. 3 time is 9, 3 4 time is 12. So your answer becomes 16/3. Got it? And see here, next question is we have to express each of the following as a ratio. So similar pattern of question है, बस बहुत important चीज ध्यान देनी है. जैसे यहाँ weeks और days में दिया हुआ है, तो इन week को पहले हम days में convert कर देंगे और फिर simplest form में हम इसको convert करेंगे. तो इसको हमने 3 weeks को लिखा 3 multiply 7 and then divided by 50. Okay, you'll solve it yourself. यहाँ पर 4 days and 72 hours. कौन सी यूनिट स्मॉल है? कौन सी? Yes, it is hours. तो हमने इसको hours में कन्वर्ट किया. कैसे? 4 multiply 24 and divided by 72. Okay. एंड इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें यूनिट दी हुई है किलोग्राम्स में और यहाँ पर हमें दी है ग्राम्स में. तो हमने सबसे पहले 3.5 को मल्टीप्लाई किया 1000 से. ब्यूटीफुल. एंड डिवाइडेड बाय 400. अब ये डेसिमल रिमूव करके यहाँ पर 10 और आया. 1 2 3 zeros are removed. So we are left with 35/4. एंड आपका रेशियो हुआ 35/4. करेक्ट? एंड और बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ 4 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर एंड दिस इज ऑलरेडी इन मिलीमीटर. तो हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. इट विल बिकम 49 and upon 30. गॉट इट? एंड यू विल ऑब्जर्व कि दोनों नंबर्स ना तो ये इवन है, इसका मतलब 2 से डिविजिबल भी नहीं है, 3 से डिविजिबल भी नहीं है, एंड वी विल लीव देम लाइक दिस. आपका रेशियो हो जाएगा 49/30. करेक्ट? और यहाँ पर 4 minutes 30 seconds. सो वी कन्वर्ट दिस मिनट इनटू सेकेंड्स. किससे मल्टीप्लाई होगा? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. हमने 4 को मल्टीप्लाई किया 60 से एंड अपॉन 30. So 32 times is 60, so we get 8/1. Now we move ahead, express the following ratio in their simplest form. Okay, so here same pattern of questions are there. बस एक बहुत important चीज याद रखनी है, जब दो terms होती है हमारे पास और उन दोनों terms को हमने लिया और उनको चेक किया कि उनकी यूनिट सेम है, we proceed. और जब उनकी यूनिट सेम नहीं होती तो हम उन यूनिट्स को सेम करते हैं और उसके बाद हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कम लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन.
The ratio of angles of a triangle is 1:2:2 and you have to find the measure of each angle. तो हमने assume किया 3 angles हैं, x, दूसरा angle 2x and 2x. And you remember what is the sum of angles of a triangle? That's equal to 180 degree. So this becomes 5x equals 180 and x is equal to 180 upon 5. 5 3 times is 15 and we get 3 remainder and 5 6 times is 18. So x is 36 और x की वैल्यू 36 आ गई, इसलिए 2x हो जाएगा 72 और हमारे एंगल्स हो जाएंगे 36, 72, 72 degrees. Correct? Now let's start a new topic that's about unitary method. तो unitary method is a part of ratio और हम इसमें क्या करते हैं, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्यादा नंबर की हमें कोई क्वांटिटी दी हुई है तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इट इनटू 1 and then we find the desired number. So we say unitary method is a very simple way of solving the mathematical problem. And इस method में हम क्या करते हैं, we first find the value of one quantity and then find the value of the required number of quantities. Got it? So there are two things we have to consider when you solve the questions based on unitary method. First है direct variation and the second is inverse variation. तो हम पहले समझते हैं कि what is direct variation, what is inverse variation. Direct variation का मतलब हुआ कि हमें दो ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आइटम एंड से प्राइस. अगर एक चीज इंक्रीज हुई तो दूसरी भी इंक्रीज होगी. आपने 2 बनानास अगर 5 रुपीज के परचेज किए तो 4 बनानास 10 रुपीज के आएंगे. Am I right? That means जैसे जैसे नंबर ऑफ बनानास इंक्रीज होंगे आपका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा. So that's called direct variation. And what is inverse variation? We have two quantities and they are called as inverse variation. अगर हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, राइट? और अगर हमने दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज की तो फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. आई विल गिव यू द एग्जांपल. सपोज एक वॉल बना रहे हैं 5 लेबर्स मिलकर, तो 5 लेबर्स ने एक वॉल को 2 डेज में बनाया. अब अगर 10 लेबर्स लग जाएंगी तो उस वॉल को वो 1 डे में प्रिपेयर कर लेंगी. तो नंबर ऑफ लेबर इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो गया, राइट? That's called inverse variation. Now we move ahead and we are going to do the questions based on unitary method of direct variation. So first example हमने लिया, the cost of 11 books is rupees 165 and you have to find the cost of 7 books. अब 11 books की cost हमें 165 दी है. हम पहला काम करेंगे 1 बुक की कॉस्ट निकालेंगे. उसके लिए 165 को डिवाइड करेंगे 11 से एंड वी गेट ₹15 एज अ कॉस्ट ऑफ 1. अब जब 1 बुक की कॉस्ट मालूम पड़ गई, हमें निकालना है 7 बुक की कॉस्ट. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस 1 बुक कॉस्ट विद 7. we'll get the cost of 7 books. That's 105. Interesting. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. If 18 boys consume 5 kg of rice in a day, how much rice will be consumed by 27 boys? So first thing is कि 18 boys 5 kg rice consume करते हैं. We'll find out 1 boy will consume how much of rice. So we'll write the consumption of rice by, so this is 5 upon 18 is the consumption of rice by 1 boy. अब हमें निकालना है कि 27 boys ने कितना rice consume किया. So we are going to multiply this 5 upon 18 by 27. इसको simplest form में convert करेंगे and we get 7.5 kg. Got it? Now here we have very interesting example. This is in 3 hours, a train covers 186 kilometer, traveling at the same speed. Speed change नहीं हो रही है यहाँ पर. What distance would the train cover in 2.5 hours?
सो फर्स्ट विल कैलकुलेट कि ट्रेन ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो 3 आवर्स का डिस्टेंस हमें 186 किलोमीटर दिया है। दैट मीन्स अगर हम 186 को 3 से डिवाइड कर देंगे, we get 62 kilometers is covered in 1 hour, and we need to find कि 2.5 hours में कितना distance cover हुआ. So we will multiply this 62 with 2.5, and on solving we get it is covering 155 kilometers in 3 hours. So we come to unitary method using inverse variation. So first example read करते हैं. 8 men can dig a well in 18 days. So how many days will they take to dig if there are 12 men? तो हमने लिखा पहले 8 men can dig a well in 18 days. अब अगर 1 man वर्क कर रहा है, that means 18 multiply 8 days यूज करेगा आप कि वो वेल को डिग करने के लिए. अब अगर 12 men वर्क कर रहे हैं, that means वर्क फिर डिवाइड हो गया. तो 18 multiply 8 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, and we get 12 days. Now we come to next example, example number 5. The question is, Sneha takes 6 days to do the work and Rupa takes 9 days to do the work. And if they both work together, how long will they take to complete the work? So first thing is, Sneha is completing the work in 6 days. तो हम सबसे पहले निकालेंगे कि 1 day में स्नेहा कितना वर्क करती है, and we say it is 1/6 part of the whole work. Now next is Rupa takes 9 days to complete the work. तो 1 day work of Rupa निकालेंगे, that comes out as 1/9. Now 1 day work of both of them is 1/6 plus 1/9. So we take the LCM. And 6 और 9 का LCM लेकर हमें मिलेगा 18, and when you solve it we get 5/18. अब ये 5/18 क्या है? 5/18 part of the work is done जब वो दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, right? So we say 5/18 part of the work is done in 1 day. Now when both work together they complete the work in, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे. तो 5/18 का रेसिप्रोकल होता है 18/5, और हमने इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, and we get 3 whole 3/5 days, right? And we write the concluding statement. Now come to the notes. So we have learned 2 ratios are said to be equivalent if their corresponding fractions are equivalent. And second thing is, the relation of equivalence between the 2 equivalent ratios A/B and C/D is expressed in the form of proportion. इसे हम proportion बोलते हैं. First ratio proportion, second proportion, and then in a proportion the product of extremes is equal to the product of means. इसका मतलब अगर हम A और D को multiply करेंगे, it will be same as means. Means का मतलब जो अंदर वाली 2 terms होती हैं, that is B multiply C. Correct? अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर. तो एक्सरसाइज एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस्ड है जो हमने अभी एग्जांपल्स किए हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चंस. लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. 10 men can dig a well in 6 days. So that means अगर हम निकालते हैं 1 man will use 6 multiply 10 days, right? और उसके बाद हमें दिया है 15 men dig the same well. तो अगर हमने कैलकुलेट किया कि अगर 15 men वर्क कर रहे हैं तो it will be 6 multiplied 10/15, and we will solve it. 3 2 times is 6, 3 5 times is 15, and we get 4 days. This is your answer. That means अगर 15 men मिलकर वर्क करेंगे, they are going to complete the work in 4 days, right? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं. 10 workers are paid ₹1,850 for 1 day. So how much money will be paid to 32 workers for 1 day? तो हमने लिखा कि 10 workers are paid 1,850 rupees. अगर 1 worker है तो उसको हम देंगे 1,850 upon 10. यहाँ पर हमने अप्लाई किया यूनिटरी मेथड, and then we want to know कि अगर 32 workers हैं
we'll write 32 workers is equal to 1850 upon 10 multiplied by 32 and you will get the answer. Correct? So in this way I want you to try the remaining questions. और अब हम आते हैं next topic पर, that is percentage. So what is percent? Percent means per 100. So when you see the meaning of per means out of, and then cent is centum, which means 100, right? So normally जब आपका result आता है आप बोलते हैं हमारे 85% आए, 93% आए. So we have not got 85 or 93 marks. That means that is the percent out of every 100. We calculate the average and then we divide it and we get the out of 100 kitne marks aaye hain, and that makes your percentage, right? Now here if you see at this data, here we have a square और इस square में हमारे पास छोटे छोटे 100 boxes है और इन 100 boxes में हमने कितने boxes को shade किया है? It is 35. So when you say 35 out of 100 boxes are shaded, so we can simply say 35% of boxes here are shaded. Got it? Now let's see if you talk about 16 marks out of 20. So 16 out of 20 को हमने simplest form में convert किया and we get 4/5. ऐसे ही 35 out of 50 का क्या meaning हुआ? 35/50 इसको simplest form में convert किया, हमें मिला 7/10. अगर अब हमने इन दोनों ratios को compare करना है, तो compare करने के लिए हमने क्या किया? कौन सा बड़ा है इसको check करने के लिए now we are stuck up because यहाँ पर denominators different है. तो इसको करने का एक बहुत सिंपल मेथड है और वो मेथड है कि हम इसको आउट ऑफ 100 कन्वर्ट कर दें. दैट मीन्स पर 100% में कन्वर्ट कर लें. दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर 5 है उसको हमने कन्वर्ट किया 100 में और उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 20 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट 80 आउट ऑफ 100. इट बिकम्स 80%. अब नेक्स्ट टाइम यहाँ 7/10 है, इस 10 को 100 बनाने की कोशिश की तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड वी गेट 70/100 which is 70%. So we say that Rima's performance is better because Rima का स्कोर है 80% and Riya का स्कोर है 70%. Got it? Let's move ahead. We learn about converting fractions, ratios and decimals into percent. अगर आपके पास डेटा फ्रैक्शन की फॉर्म में है, रेशो की फॉर्म में है या डेसिमल की फॉर्म में है और उसको आपने परसेंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? So first thing we learn the conversion of fraction into percent. कोई भी फ्रैक्शन दिया है, बहुत सिंपल रूल है, उसको मल्टीप्लाई 100% कर देते. परसेंट का मतलब 100, तो 100/100 इसका मतलब 100% और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, वी गेट 35%. यहाँ हमारे पास 2 1/4 है तो इसको सबसे पहले हमने लिखा 9/4 and this 9/4 is written as multiply 100% and we get 225%. Now we come at the next topic, that is कैसे convert करेंगे ratio को percent. So to convert ratio into percentage सबसे पहले हम ratio को fraction की form में लिखेंगे, right? और फिर उसको multiply कर देंगे 100 से, जैसे यहाँ ऊपर किया था fraction को, and we'll write percent sign. तो देखो कैसे 3/5 दिया हुआ है, 3/5 को हमने सबसे पहले 3/5 लिखा and multiply 100%. अब इसको simplest form में convert किया तो हमें मिला 60%. Got it? Take another example, 11/10. 11/10 का मतलब 11/10 और 11/10 को multiply 100 किया, so we get 110%. Now coming to third category, to convert a decimal into percentage. So to convert a decimal into percent, we move the decimal place to the right by 2 places. बस decimal place को right shift करेंगे 2 places और उसके आगे हम put कर देंगे percent का sign. So let's see, we have an example here. We have 1.5. अब 1.5 को percent में convert करना है, लेकिन decimal के बाद तो यहाँ सिर्फ 1 place है,
तो हमने किया इसको 150%. Similarly, it is 22.8. यहाँ डेसिमल को राइट 2 प्लेसेस शिफ्ट करना है, इसका मतलब एक जीरो और लगाना पड़ेगा और हमें मिला 2280%. Got it? Now, how to convert the percent into fractions, ratios or decimals? So, अभी तक जितना सीखा है ये उसका सब रिवर्स करेंगे हम. To convert a percent into fraction, तो यहाँ पर we are going to divide the number by 100 and then we are going to drop the percent sign, क्योंकि अब हम परसेंट बना नहीं रहे, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो अगर हमने लिखा 30%, 30% का मतलब हुआ 30/100 and 30/100 means इसको simplest form में convert किया, we got 3/10. Now we are going to learn to convert a percent into ratio. So to convert a percent into ratio, we are going to divide the number by 100 and then we drop the percent sign. So we express the obtained fraction in the simplest form. That means जो fraction हमें मिलेगा हम उसको simplest form में convert करेंगे. तो यहाँ हमने लिया 56%. 56% का मतलब होता है 56/100 and ये दोनों numbers 4 से divisible है. We divide by 4, we get 14/25 and हमने उसको लिखा 14/25. Next is 120%. तो 120% का मतलब होगा 120/100 और दोनों नंबर्स को हमने 20 से डिवाइड किया, हमें मिला 6/5 and we write 6/5. Got it? Now we come at my notes. First is the simplest way to convert a fraction, decimal or ratio into the percent is to multiply by 100%. And to find the given percent of a certain quantity, simply multiply the given percent with the given quantity. So if we have B% of whole quantity as X, we write down the whole quantity is X multiply 100/B. And then we also have the percent change. Percent change कैसे निकालते हैं? जो भी change है upon original amount multiplied by 100. Come to the third category. यहाँ पर है हमारे पास to convert a percent into decimal. तो कैसे करेंगे? For converting a percent into decimal, we drop the percent symbol and we are going to shift the decimal point by 2 places to the left side. And इसको हम दूसरी तरह भी कर सकते हैं. We divide the given number by 100 and then we remove the percentage symbol. So see here it is 0.3%. सबसे पहले हम लिखेंगे 0.3/100. यहाँ 2 places of 0 है. That means यहाँ से decimal 2 places left shift होगा and we get 0.003. Take another example. 73%. इसको हम लिखेंगे 73/100. And because we have 2 zeros in the denominator, we are going to shift decimal to 2 places of right. Got it? Now next is to find the percent of given quantity. So for obtaining the percent, that is we say y% of a number which is, let's say it is x, we multiply x with y/100. So y% of x will be y/100 multiplied by x. Let's move further. हमने example number 12 लिया. So find 30% of 240 kg. So we say 30% of 240 kg निकालना है. 30% का मतलब 30/100 and we multiply by 240 kg. और इसको सिंप्लीफाई किया हमने, हमें मिला 72 kg. Got it? एक और एग्जाम्पल देते हैं. 40% of the population of a town are males, and if the total population of the town is given as 285,000, find the number of males in the town. So number of males will be 40% of the population, and we say 40% of 285,000 is equal to 40/100 multiply 285,000, which comes out as 1,40,000. Got it? अब हम आते हैं how to find the whole by given percent. So how many times we come across the problems?
So what are the problems like? Suppose if 30% of sum of money is rupees 270, then what is the total sum of the money? That means हमें 30% of the money दी हुई है और हमें whole calculate करना है. How much was the total money? ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता है कि हमें टोटल मनी निकालनी है. हमने टोटल मनी को एज्यूम किया x. अब हम बोलते हैं 30% ऑफ टोटल मनी इज इक्वल टू 270. सो विल राइट 30% ऑफ x इज इक्वल टू 270. गॉट इट? 30% का मतलब 30 अपॉन 100. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई किया अपॉन 270. अब इस इक्वेशन में हमारा x अननोन है, तो 270 से 100 मल्टीप्लाई किया और इसको 30 से डिवाइड कर दिया और सॉल्व करके हमें मिला 900. इसका मतलब टोटल मनी हमारे पास 900 थी, जिसका 30% हुआ 270 rupees. I hope you understand. And now we have another example based on it. So the question is, a 25% reduction on the price of the suit is equal to 450. Now what is the original price? यहाँ हमें original price of the suit निकालना है. ओरिजिनल प्राइस हमने x एज्यूम किया. अब 25% ऑफ x हमारा हो गया ये जो रिडक्शन आया है, विच इज इक्वल टू 450 रुपीज. सो 25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय x इज 450 और इसको सॉल्व किया तो हमें मिला 1800. दैट मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ द सूट थी 1800. इसका रिडक्शन हुआ 450 rupees, which was only 25% of 1800. Clear? And now we have a exercise. तो जल्दी से देखते हैं. First question, express the following fraction as percent. क्या करेंगे यहाँ? Multiply by 100. Very nice. And express the ratio as percent. तो हमने fraction लिखा और उसको multiply 100 किया. Next is express the decimal as percent. तो डेसिमल को परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हम डेसिमल रिमूव करेंगे और नीचे 100 आया तो ये बना 4%. ऐसे ही यहाँ पर डेसिमल रिमूव किया और डिनोमिनेटर में 100 आ गया तो ये बना 208%. अब यहाँ क्या किया? यहाँ पर जब डेसिमल रिमूव किया तो डिनोमिनेटर में आया 1000, लेकिन परसेंट बनाने के लिए हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? 100. तो एक जीरो से एक जीरो रिमूव किया और हमें मिल गया 25%, बिकॉज हमें मिला 25 अपॉन 100. एंड सिमिलरली व्हेन यू रिमूव दिस डेसिमल, यहाँ पर हुआ 1225 अपॉन 100, सो इट इज 1225%. देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में लिखने के लिए परसेंट का साइन रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 100 और उसको सिंप्लीफाई करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज रेशियो. सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. यहाँ हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है. डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें दिया है 3% विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 100 और इसको यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस हैं, सो डेसिमल विल शिफ्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ लेफ्ट एंड वी गेट 0.03. So we have already done so many questions based on it. Remaining questions you please try yourself. And we come to 7th question. Question is we have to find the percent. किस चीज का percent? 25. What percent of 25 is 500? So we write x percent of 500 is 25. और x percent का मतलब x upon 100. यहाँ मल्टीप्लाई बाय 500 किया, 0 से 0 कैंसिल एंड इज इक्वल टू 25. सो x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 एंड वी गेट द वैल्यू एज 5%. वी से 5% ऑफ 500 इज 25. ओके, सिमिलरली रुपीज 50 इज 250. सो वी से that x percent of 250 is 50 and then we calculate. Okay, similarly find the number whose 12% is 60. यहाँ पर हमने
12% of a number is 60. ऐसे लिखेंगे 12% of कोई जो number unknown है, that means x is equal to 60. So we write 12 upon 100 x is 60 और x की वैल्यू आ गई 60 multiply 100 upon 12 and we get x as 500. Correct? So I believe you have understood the concept and do the remaining parts yourself. Ninth question देखते हैं. A railway ticket costs rupees 720. Further 4% tax of this amount is added to it. So what is the total amount of the ticket? पहले हम 4% of 720 कैलकुलेट करेंगे. कैसे? 4% का मतलब 4 upon 100 of 720. And when you simplify it, 4 2 2s are 4 and 2 5s are 10 and we get 144 upon 5. And this is again simplified. 5 2 times is 10. Then we have 4 remainder. 5 8 times is 40.80 rupees. Right? अब इस मनी को हम ऐड करेंगे 720 में. Okay? Because यहाँ पर 4% टैक्स है. ये टैक्स हमारा रुपीज 28.80 आया. इस अमाउंट को 720 में ऐड करेंगे. So what do you get? We get the total amount जो हमने पे करना है. Correct? Look at the next question. A 28% increase in the price of sari is 128. You have to find the original price of the sari. अब ओरिजिनल प्राइस तो नहीं मालूम. हमने ओरिजिनल प्राइस कंसिडर किया x. ओके. और हमने बोला 28% of x is 128. So we write down 28% of x is equal to 128. Now you can calculate the value of x. Got it? Similarly, let's read the next question. In the examination, 90% of candidates pass and 60 candidates fail. जब 90% पास हुए हैं कैंडिडेट तो कितने परसेंट फेल हुए? परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100. सो वी से 100 minus 90 is equal to 10. That means 10% कैंडिडेट्स फेल हुए. और नंबर में हमें 10% कैंडिडेट्स दिए हुए हैं 60. So we say that अगर total candidates x हैं तो 10% of total is equal to 60. That means 10 upon 100 x is equal to 60. And when you simplify x की value हमें 60 multiply 10 we get 600 candidates. Got it? And this way I want you to try the remaining questions. अब हम new topic start करते हैं, that is profit and loss. अब हम new topic start करते हैं which is profit and loss. तो बहुत ही commonly use होने वाला topic है, बहुत ही interesting topic है जो आपकी day to day life में use होता है. Suppose एक shopkeeper है, वो market में कोई item sale करना चाहता है, तो वो wholesaler से एक item purchase करके लाएगा और जिस प्राइस में वो आइटम परचेज करेगा दैट इज अ कॉस्ट प्राइस फॉर दैट शॉप. अब उस अमाउंट के अलावा हमने वहां पर उसको किसी और कॉस्ट में सेल किया. अब वो कॉस्ट जिस कॉस्ट में एक आइटम शॉप पर सेल हो रहा है वो कॉस्ट प्राइस से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है. और जिस प्राइस में हम सेल कर रहे हैं हम उस प्राइस को बोलते हैं सेलिंग प्राइस. राइट? तो हमारी कंडीशन है कि अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हुआ तो हमारा शॉपकीपर प्रॉफिट अर्न कर रहा है. लेकिन अगर उसने जिस प्राइस में परचेज किया है कॉस्ट प्राइस उससे कम पैसे में कस्टमर को कोई आइटम सेल कर दिया तो इस केस में वो लॉस में चला गया. इसका मतलब अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो हमारे पास लॉस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है. So that means if selling price is greater than cost price, we say it is a profit. And कितना profit? Profit is selling price minus cost price. But second condition है कि अगर cost price ज्यादा है selling price से
So it will be loss. और कितना loss? Cost price minus selling price. Did you understand it? Now, if we come at the situation जहाँ cost price और selling price same है, एक शॉपकीपर ने जितने कॉस्ट पर आइटम को परचेज किया उसी कॉस्ट में उसको सेल कर दिया. So he is not going to get any profit and there will be no loss also, right? So let's take the example. Suresh purchased a old bicycle for ₹1000 और उसने 250 रुपीज उसको रिपेयर करने में लगाए. कोई कॉस्ट रिपेयरिंग में आती है, ट्रांसपोर्ट में आती है, पॉलिशिंग में आती है, उसको हम बोलते हैं, या कोई लेबर कॉस्ट है, हम उसको ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम से या ओवरहेड चार्जेस के नाम से बुलाते हैं, राइट? तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 प्लस 250 हो गई एंड वी से इट इज अ नेट कॉस्ट प्राइस. गॉट इट? नाउ प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड एक्सपेंसेस दैट आर डन ऑन इट एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट. तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100. और अगर हम लॉस निकाल रहे हैं, लॉस भी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, वी से लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. दैट बिकम्स अ लॉस परसेंट. कम एट एग्जांपल 50. अ फ्रूट सेलर bought some oranges for ₹2150 and he sold them for ₹2500. The question is whether he gets gain or loss. तो यहाँ पर cost price हमें दी है 2150 and selling price is more, which is 2500. So it is a condition of profit. We say profit is selling price minus cost price and we get ₹350 as profit. Correct? Now let's take another example. Example number 16. James purchased an article for ₹2200 and sold it for the profit of 20%. What is the selling price of the article? तो पहले हम बात करते हैं cost price of the article की, which is ₹2200 और profit earn किया उससे 20% of 2200, which is equal to 450. अब सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट एंड वी गेट ₹2640. दिस बिकम्स योर सेलिंग प्राइस. गॉट इट? लेट्स मूव फर्दर. टेक अनदर एग्जांपल हियर. बाय सेलिंग अ आर्टिकल फॉर ₹660, Pradeep had a loss of ₹60. At what price must he sell to gain 15%? तो हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया है, लॉस दिया है और हमने उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट किया. कॉस्ट प्राइस इज सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. यहाँ पर हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस. अब हमने इस कॉस्ट प्राइस के बाद उसको सेल करना है 15% गेन पर. तो हमने कैलकुलेट किया 15% ऑफ ₹720 एंड वी गेट अ न्यू प्रॉफिट विच इज ₹108. अब इस प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में ऐड किया तो हमें मिला ₹828. दैट मीन्स उसको उस आर्टिकल को 828 रुपीज में सेल करना है, तभी उसको 15% प्रॉफिट मिलेगा. एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं. द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स. अब हमने ये देखना है कि क्या प्रॉफिट है. सो फाइंड द गेन परसेंट. हमने एज्यूम किया कि फॉर 1 पेंसिल द कॉस्ट प्राइस इज X रुपीज, तो 10 पेंसिल्स का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 10x. अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेंसिल्स विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 पेंसिल्स. तो 11 पेंसिल्स की कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 11x. तो यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हुआ, ये कॉस्ट प्राइस हुआ. ऑफ कोर्स इट इज अ केस ऑफ प्रॉफिट. So selling price of 10 pencils, that is 11x minus cost price of 10 pencils, which is 10x, and we say it's a profit of ₹X. So what is the profit percent? Profit percent is profit upon cost price multiplied by 100, and on solving we get 10%. We say it's a gain of 10%. Let's move ahead. Take another example. Example number 19. A shopkeeper bought
24 chairs at a rate of rupees 450 per chair. He sold 16 of them at a rate of rupees 600 per chair and the remaining at the rate of rupees 400 per chair. The question is find his gain or loss percent. So we first talk about the cost price कितनी है 24 chairs की. It is coming as 450 multiply by 24. हमें मिला 10,800. अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 16 चेयर्स. तो 600 मल्टीप्लाई बाय 16 ये आ गया सेलिंग प्राइस. अब रिमेनिंग चेयर्स कितनी रह गई? 8 और चेयर्स हैं. 8 चेयर्स सेल हुई रुपीज 3,200. इसका मतलब जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें टोटल सेलिंग प्राइस पता चल गया. अब टोटल सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो ये सिचुएशन कैसी हुई? प्रॉफिट की या लॉस की? यस, दिस इज द प्रॉफिट एंड वी से सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस which is equal to 2,000 rupees. तो हमें प्रॉफिट मिला 2,000 rupees का और उसके बाद हम निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट. तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. सो वी से 2,000 अपॉन the cost price which was 10,800 multiplied by 100 and we say it's a profit of 18 whole 14 upon 27%. So this way I believe आपको ये सारे concept profit loss के clear हो गए. अब हमारे पास exercise है same pattern पे which I want you to try yourself. Now we are going to start a very interesting topic that is simple interest. तो ये पूरा chapter बहुत interesting topics का combination है, right? यहाँ पर हम सीखेंगे what is simple interest. So normally क्या होता है बेटा? हमारी family में जब हम कुछ money earn करते हैं तो हर बार अपनी earning का कुछ part अलग save करते हैं. और वो क्यों save करते हैं? हमारी कोई भी फैमिली रिक्वायरमेंट होती है, कोई घर में फंक्शन होना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, कोई आउटिंग प्लान कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग, घर की रिपेयरिंग और एक न्यू हाउस परचेज करना है तो हम अपनी मनी को अलग सेव करते हैं. बट समटाइम्स इट हैपन्स कि हम जब अपना कोई फंक्शन प्लान कर रहे हैं या अपनी उस सेविंग को कहीं स्पेंड करने की सोचते हैं तो हमारा बजट जितनी सेविंग है उससे कुछ ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है. वो मनी कहाँ से आएगी? और उस मनी का अरेंजमेंट होता है किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से. वो बैंक हो सकता है, किसी फ्रेंड से हम बोरो कर सकते हैं. बट वो मनी हमें क्यों देगा? क्यों देगा का बहुत इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई है कि हम किसी से मनी लेते हैं और उसका इंटरेस्ट देते हैं उसको कि मनी प्लस कुछ एक्स्ट्रा मनी हम उसको देंगे बिकॉज हमने उसकी मनी को यूज किया है. एंड वो एक्स्ट्रा मनी क्या होती है? उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट. जब किसी से मनी बोरो कर रहे हैं, कितनी मनी हमने बोरो की है, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल. और कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द टाइम. कितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए बोरो कर रहे हैं एंड किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रहे हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि it is the agreed percent of the total sum borrowed which is to be returned to a person जिससे हमने मनी को borrow किया, right? So when we repay the money, जब repay करते हैं मनी तो उस मनी में हमने अपना पहले वाला मनी जितना हमने borrow किया था that's called principal plus जो extra money है that's called simple interest. इन दोनों को add करके मनी को हम return करते हैं. तो रिटर्न मनी को हम बोलते हैं अमाउंट एंड अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट वी आर रिटर्निंग बैक. ओके, अब इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे और इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज कैलकुलेट करने वाले हैं. तो अगर हमें मालूम है कि हमने कोई मनी बोरो की उसको हम बोल रहे हैं पी, फिर कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हैं. तो जो मनी हमने बोरो की है दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल. कितने टाइम के लिए बोरो की है दैट्स कॉल्ड टाइम, टी से रिप्रेजेंट करते हैं. और कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हम मनी ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं रेट एंड डिवाइडेड बाय 100. ये फॉर्मूला हो जाता है कि हमने कितना मनी रिटर्न करना है. दैट्स कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट.
अब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे विच इज यूजिंग दिस फॉर्मूला, और एक बार इंटरेस्ट निकल गया तो हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. So let's do some example here. First example is a sum of rupees 1,500 is lent for 2 years at a rate of 5% per annum. तो पहली चीज interest for 100 rupees for 1 year is rupees 5. 2 years का interest हो जाएगा 5 multiply 2, and we say interest of rupees 1 for 2 years will be equal to 5 multiply 2 upon 100. अब अगर 1,500 रुपीज है तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 5 multiply 2 multiply 1,500 divided by 100, और यहाँ आपका फॉर्मूला क्रिएट हुआ. अगर हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100. ओके, and now we are going to do the problems based on this formula. Okay, अब प्रिंसिपल अगर हमें अननोन है, कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमें मालूम है हमने कितना इंटरेस्ट पे किया, कितने टाइम में पे किया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बट मनी कितना लिया था वो कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है. सो वी आर गोइंग टू राइट प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट मल्टीप्लाई टी. और इसी तरह अगर हमें रेट कैलकुलेट करना है तो रेट कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी. एंड इन द सेम वे हमने पी निकाला, आर निकाला. अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई आर. दिस बिकम्स योर फॉर्मूला. अब एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 20. Gaurav borrowed rupees 8,500 from a bank and he paid 10% per annum and returned the amount after 3 years. So, how much interest did Gaurav pay in all? तो हमने सबसे पहले प्रिंसिपल लिया. Principal is rupees 8,500. Rate of interest is 10% per annum and it is borrowed for 3 years. So, we say interest is PRT upon 100. हमने यहाँ पर values put की and we get the value which is 2,550, and we say that Gaurav has paid interest of rupees 2,550 on this amount for 3 years. Got it? Now let's take another example. Example number 21. At what rate % per annum will rupees 7,000 reduce rupees 350 as a simple interest for 2 years? तो यहाँ पर हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमें टाइम भी दिया है 2 years, एंड वी नो प्रिंसिपल यहाँ पर है रुपीज 7,000. व्हाट डू यू वांट टू कैलकुलेट? वी नीड टू नो कि कितने रेट पर परसेंट पर हमने इंटरेस्ट पे करना है. सो वी अप्लाई द फॉर्मूला. रेट इज 100 times interest upon P multiply T, and on putting the values हमें मिला 2.5% per annum. Take next example now. Suhail borrowed rupees 12,000 from his friend and he gave rupees 8,000 at 18% and the remaining amount at 15%. So how much interest did he pay in 3 years? So first thing we'll calculate interest paid on rupees 2,000 for 3 years at 18%. इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे. पहले हम लेंगे 2,000 रुपीज पर 18% इंटरेस्ट. टाइम सेम रहेगा 3 years, लेकिन जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट मीन्स 10,000 रुपीज पर ही इज गोइंग टू पे 15%. तो हमने इन दोनों को फिर ऐड कर देना है. तो इंटरेस्ट 1 कैलकुलेट किया, दैट कम्स आउट एज 1,080 रुपीज. अब हम रिमेनिंग 10,000 का 15% इंटरेस्ट निकालेंगे which comes out as rupees 4,500. अब इस 4,500 और 1,080 को ऐड किया and we get the total interest returned is rupees 5,580 rupees, which is given after 3 years. Got it? Come to next example. In how many years the sum of money double itself at 10% interest per annum? तो हमें प्रिंसिपल नहीं मालूम, हमने प्रिंसिपल एज्यूम किया रुपीज एक्स. अमाउंट डबल हो रहा है,
that means amount हो जाएगा 2x and rate of interest is already given 10% per annum. अब अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 2x माइनस x, तो इंटरेस्ट बना x. अब इंटरेस्ट मालूम है तो टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम विल बी 100 मल्टीप्लाई I अपॉन T मल्टीप्लाई R. We put the values, we cancel x and x and we come with the answer 10 years. That means after 10 years जितना अमाउंट हमने लिया है उसका डबल हमें रीपे करना पड़ेगा. ओके, नाउ वी मूव अहेड एंड वी हैव अ एक्सरसाइज रीड करते हैं. Ritu borrowed some money at 14% per annum. She had to pay rupees 252 as interest after 3 years. What sum did she borrow? That means यहाँ पर प्रिंसिपल नहीं मालूम, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है एंड शी हैज टू पे. दिस इज द इंटरेस्ट जो आई की वैल्यू है and time is also given. So we put in the formula and we get the values. So in the same way we have different questions which I want you to try yourself. सारे questions example के ऊपर ही based हैं. अब हमारे पास MCQ आते हैं. तो first question is you have 0.354 and it is to be written as percent. So 0.354 को जब percent में convert करेंगे तो हमने ऐसे लिखा 0.354 एंड वी वांट कि परसेंट आएगा तो डिनोमिनेटर अपॉन 100 होना चाहिए, तो डेसिमल प्लेस विल शिफ्ट टू राइट बाय 2 प्लेसेस एंड अपॉन 100 आ जाता है. सो योर आंसर विल बी 35.4. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4/5 को परसेंट में एक्सप्रेस करना है. परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए मल्टीप्लाई 100% करते हैं, डू यू रिमेंबर, and it becomes 20 and 20 times 4 is 80, so your answer becomes 80. Next question is what number is 120% of 45? So we write down 120% of 45 ऐसे लिखेंगे और इसको फिर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. 5 2 time is 10, 5 9 time is 45 and this is 6. So we get 9 times 6 is 54. This is your answer. Come to the next one. What percent of 8 is 5? कैसे लिखेंगे? X percent of 8 is 5. Write down like this. X upon 100 multiply 8 is 5. So X becomes 5 multiply 100 upon 8. And now you are going to solve it. You will get the answer. Okay. So 4 2 time is 8 and 4 25 time is 100. 25 5 time is 125 and 125 upon 2. That means your answer is 62.5. Got it? Interesting है ना बहुत? आगे देखो. 31% of what number? Number नहीं मालूम तो हम लिखेंगे 31% of x is equal to 279 and now you will get the value. So how will you get? X is equal to 279 upon 31 multiplied by 100 और इसको जब हम कैंसिल करेंगे we get 9. So your answer becomes 900. समझ आ गया? That means we have done variety of questions. हमने बहुत सारे कंसेप्ट सीखे हैं इस चैप्टर में and I hope you enjoyed learning it. So stay connected for the next video. Till then, goodbye.